Hello and welcome to Wajiram and Ravi's Achievers podcast series. Today we have with us Lisa Garg, and she has secured a rank of AIR of 303 in 2024-25 uh, UPSC Civil Services examination. And welcome, Lisa, Thank you. and hearty congratulations to you. Thank you. Thank you. Thank you, sir. Okay, so whatever you want to start with, let's start with whatever you want to say. So, first of all, I'd like to express my heartfelt gratitude to the entire team of Vajiram and Ravi. And I have been a student here. I was enrolled in both the GS Foundation as well as the CSAT. And whatever the guidance I have received from here, whatever notes I have made out of these lectures, they have really, really helped me in finally clearing the exam. So, a heartfelt gratitude to the entire team here. So this was your fourth attempt. Yes, sir. This was And my fourth you wrote attempt. the exam consecutively, successively. Yes, 22 onwards I started writing. 22, 23, 24 I couldn't clear the first three prelims. Then in 2025 I could finally clear the exam, and the prelims was cleared. So after that I worked very hard कि mains में नहीं रुकना है. Then mains भी निकल गया, फिर interview, फिर could finally see my name in the final merit list. Amazing. So, like on a lighter note, what is the feeling currently, and what was the feeling when you saw your name in the final list? So, dear students and friends, Lisa puts across an amazing example of how consecutively not clearing the pre for the first 3 years, and then fourth year, bam, all the way to the final list. So, what was the feeling when you saw the list, and were you already expecting कि हाँ interview तो अच्छा हुआ ही है, मुझे अब इस बार कोई नहीं रोक सकता? सर एक्चुअली काफ़ी इमोशनल मोमेंट था, क्योंकि ऐसा होता है ना, व्हेन वी फेल कंसेक्यूटिवली ऐसा लगता है दैट यूपीएससी इज नॉट मेड फॉर अस, मतलब कभी नहीं होगा. एंड वी आर ऑल सराउंडेड विद सर्टेन नेगेटिव पीपल एंड क्रिटिक्स, तो दे ऐड टू योर, दे काइंड ऑफ पुट सॉल्ट टू योर वुंड्स कि यू नो आई थिंक यू शुड रिकंसिडर, पता नहीं तुम, मुझे नहीं लगता यू नो यू विल बी एबल टू क्लियर. तो नेगेटिविटी आती है, थोड़ा डिप्रेसिंग भी होता है इनिशियली, but then we realize that it's all about how hard you fight back, and you should be very clear with your goals, very clear with your dreams. तो मेरा ये था कि क्योंकि मुझे ये करना था, तो आई अगेन मैंने ज़्यादा बॉदर नहीं किया कि लोग क्या कहेंगे, क्या सोचेंगे. नॉर डिड आई कैरी द वेट ऑफ माई प्रीवियस फेलियर्स कि 3 बार नहीं हुआ तो इस बार भी नहीं होगा. ऐसा मैंने कोई नेगेटिव थिंकिंग नहीं रखा. मैंने आई स्टार्टेड फ्रेश. मैंने रिकैलिब्रेट किया अपनी स्ट्रैटेजी को, अपने नोट्स को फिर से ठीक किया, मॉक टेस्ट ज़्यादा लगाए इस बार, एंड वट एवर वॉज इट आई डिड इट. आई मतलब मेरा ऐसा था कि मुझे अपना बेस्ट देना है इस अटेम्प्ट में, जो मैंने दिया, एंड बाय गॉड्स ग्रेस आई थिंक आई एम हियर टुडे. आपके इस आंसर से थैंक गॉड, एंड आई एम ग्लैड दैट यू पुट across so many things which have created so many questions. I hope I remember during this podcast. You are from a very good engineering college, NIT, right? So दो तीन questions मेरे इसके बारे में हैं. So like you are from a very good engineering college. If you had rather in a parallel universe gone for a job, you would have got a wonderful job, and right now, like after so many years, you would have been at the peak of your career. तो कितना डिफिकल्ट था आपके लिए आफ्टर नॉट मेकिंग इट इवन थ्रू द प्रीलिम्स फॉर द फर्स्ट 3 years? और आपके साथ के सारे लोग तो इसमें नहीं कर रहे होंगे, किसी ने जॉब कर लिया होगा, कोई अब्रॉड चला गया होगा, किसी ने एंटरप्रेन्योरशिप किया होगा, तो वो कहीं ना कहीं से तो पता चलता ही है, इवन इफ यू हैव शट डाउन योर सोशल मीडिया. तो आपके लिए वो इंटरनल टसल कितना डिफिकल्ट था? आई थिंक दीज आर द थिंग्स दैट पीपल जनरली डोंट टॉक अबाउट, सो लेट्स एडुकेट आवर स्टूडेंट्स अबाउट दैट. देखिए, डिफिकल्ट तो है, क्योंकि कंपैरिजन हर इंसान करता है. नो डाउट, यू नो, वी ऑल से कि कंपेयर नहीं करना चाहिए. यू शुड ऑलवेज लुक एट योरसेल्फ एंड यू शुड ऑलवेज सेलिब्रेट योर सक्सेस रादर देन कंपेयरिंग योरसेल्फ विद अदर्स. बट इनवॉलंटरीली हम सब लोग कंपेयर करते हैं कि ये इतना आगे निकल गया मेरे से, मैं यहीं पे हूँ, आई एम जस्ट स्ट्रगलिंग विद माई प्रीलिम्स, एंड समबडी इज डूइंग, they are achieving great success in their lives, they are hitting milestones, people are settling down. सो ये एक होता है, यू नो, इंटरनली यू फील डीमोटिवेटेड, डीमोरलाइज्ड कि मैं
कहाँ आ गई, कहाँ आके फंस गई, मुझसे होगा भी या नहीं. But in certain times, I think it's very important to keep that belief in yourself that if I have taken this decision, because decisions कभी, ये मुझे लगता है कि decisions कभी सही या गलत नहीं होता. Once you have decided, then you should put all the effort to make that decision right. I mean the outcome of that decision to should be right. तो इसीलिए मैंने सोचा कि एक बार क्योंकि मैंने डिसाइड कर लिया कि सिविल सर्विसेज में जाना है, तो आफ्टर दैट क्विटिंग वाज नॉट एन ऑप्शन फॉर मी, बिकॉज समवेयर आई बिलीव्ड दैट आई डिडंट कम दिस फार ओनली टू कम दिस फार. जब मैंने डिसाइड कर ही लिया कि मुझे इसमें जाना है, देन जस्ट आई वेंट ऑल आउट कि यही, अब ये मैंने सोच लिया तो मुझे यही करना है. और लाइफ में क्या होता है, नाउ रेट्रोस्पेक्टिवली इफ आई थिंक, कि आप कुछ भी परस्यू करें, आई एम नॉट सेइंग यूपीएससी, वेदर यू आर गोइंग फॉर अ स्टार्टअप, तो स्टार्टअप्स में भी you know it's a known fact that you might face failures. बहुत सारे लोग होते हैं जब स्टार्टअप करते हैं, they face failures, especially in our country, the especially failure in our rate is country, very high, yes, very high. but they don't give up. तो एक आध बिजनेस फेल करने के बाद भी they bounce back stronger. तो ये हर डायमेंशन में, स्पोर्ट्स में आप देख लीजिए, इवन ग्रेट स्पोर्ट्स पर्सनालिटीज लाइक विराट कोहली, धोनी, after getting out consecutively 3 times on zero, you can make it in the final. yes I mean they bounce back. तो सबके लाइफ में ये जाता है, और हर करियर में you'll find highs and lows in every career. Absolutely. whatever you pursue. तो अगर आपको भागने की आदत है, that whenever things get difficult you are running away, then you'll not end up anywhere. आप कहीं भी सक्सेसफुल आप नहीं हो पाएंगे in whatever field you pursue, because every field has its own challenges. It can be different. The challenges faced by a UPSC aspirant might not be the same as challenges faced by Virat Kohli in his life. That might be different. Absolutely. But in his stature, he is also facing certain challenges. Even aspirants also face challenges. But how you overcome them, that will determine the kind of altitude you will reach in life. मेरा तो ये मानना है. So friends, point to be noted, भागना आदत होती है. जी जी. Okay. So भागना नहीं चाहिए. नहीं चाहिए. Absolutely. So for some people, I think एक finding a midway between 0 and 1, मैं ये कहूँगा कि कुछ लोग जो शायद influence होकर आते हैं, inspire होकर नहीं, उनको जब सच्चाई का पता चलता है, maybe a lot of people get to know after like 1 year कि यार मुझसे जम नहीं रहा है, तो maybe they can leave because they realize later. But once if you really want to do this and you're just getting anxious because कि मेरे साथ वाले ने वो गाड़ी ले लिया है, या फिर उसका वो जॉब हो गया है, या वो सेटल हो गया है, तो भागना is kind of not done. Yeah. Okay. Like don't compare yourself with somebody else's Absolutely. life. Every flower has its own time in which it will bloom. मुझे in fact like what people do is that they compare the chapter 2 of their life with somebody's chapter 12. Wow. You don't know what he was when he was in the chapter 2 of his life. Very nicely put. Very nicely. Yeah. Put. And you don't know what is meant for you when you reach chapter 12 in your life. तो अपना 2 को किसी के 12 से कंपेयर मत कीजिए. Chapter in the book of life. हाँ, correct. तो सक्सेस हैज मैनी फादर्स वाली बात है. देयर आर ऑल सक्सेस स्टोरीज, लेकिन उसके पीछे का जो स्लॉगिंग है उसके बारे में लोग कम जानते हैं. अनदर क्वेश्चन रिलेटेड टू योर इंजीनियरिंग बैकग्राउंड. सो देयर इज बहुत सारा एयर है इन द मार्केट दैट अ considerably large chunk of engineers or of the selected students are engineers, so maybe engineering is like a ticket to success for UPSC. तो मैं जानना चाहता हूँ कि I have also pursued engineering, तो मुझे ये पता है कि ऐसा नहीं है, लेकिन जो लोग इंजीनियर्स नहीं हैं उनको ऐसा लगता है कि कुछ तो इंजीनियरिंग में ऐसा है कि, तो मैं चाहता हूँ कि आप दोनों के बारे में बात करें. What engineering got into you, जिसकी वजह से आपको लगा कि आपको हेल्प हुई, कि मैंने इंजीनियरिंग किया है इस वजह से मुझे हेल्प हो रही है, एंड बिकॉज ऑफ इंजीनियरिंग बैकग्राउंड और साइंस बैकग्राउंड, या इतने दिनों से हम सिर्फ वही चीज़ पढ़ रहे थे, 6 साल फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स पढ़ रहे थे, या इंजीनियरिंग टेक्निकल पढ़ रहे थे, तो उसकी वजह से क्या प्रॉब्लम्स भी आई? मतलब प्रॉब्लम्स नहीं कहूँगा, चैलेंजेस कहूँगा. चैलेंजेस क्या है? व्हाट वाज नॉट इन योर फेवर एंड व्हाट वाज इन योर फेवर? जी. So engineers, especially coming from institutes like IITs and NITs or people who pursue MBA from IIMs, तो actually per se कोई advantage नहीं है UPSC एग्जाम में. ये मैं बहुत क्लियरली मेंशन करना चाहूँगी that UPSC में ऐसा कोई एडवांटेज नहीं है इंजीनियर्स को. बट जो रिगर होता है ना कॉलेजेस में, because you don't
pass an exam in those premier institutes just like that. You have to Hmm. literally slog. When I say slog, you have to literally slog. ऐसे marks नहीं देते हैं. You will not imagine. हमारे कॉलेज में एक प्रोफेसर थे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के, आई विल नॉट टेक नेम्स हियर, Okay. बट he will give for a 2 or 3 marks answer, he will give a derivation जो 2-3 pages का होता है, and मतलब they are like, he'll put the challenge कि तुम पास करके दिखाओ. मैं नंबर ही I नहीं think we दूंगा, all तुम can पास relate करके with it. दिखाओ. We all हाँ, have that one professor like so that. we are kind of accustomed to that kind of rigor कि कितना भी challenges क्यों ना आए, we will study, we will do whatever we can and we will get through it. तो ये एक मेंटालिटी होती है जो मुझे लगता है स्टूडेंट्स कमिंग फ्रॉम इंजीनियरिंग बैकग्राउंड्स एंड मेडिकल बैकग्राउंड्स एंड फ्रॉम प्रीमियर कॉलेजेस लाइक IIMs, तो trained होते हैं, they are trained to do hard work because they have done that hard work at certain point in their life, so they are trained to do the hard work. versus vis-a-vis क्या होता है कभी कभी, अगर मैं बोलूँ कि लाइक दैट क्वेश्चन यू आस्क्ड कि नॉन इंजीनियरिंग कैंडिडेट्स का क्या है, तो मैं बोलना चाहूंगी कि आप डिसिप्लिन रखिए. द ओनली थिंग दैट मैटर्स हियर इज डिसिप्लिन एंड द मोटिवेशन टू स्टिक ऑन टू द प्लान इवन इफ थिंग्स आर नॉट गोइंग योर वे, और इजिली गिव अप मत कीजिए. तो अगर आप इसको फॉलो करेंगे then I think there is no such a difference between engineering background and humanities background. A lot of humanities background, so many top rankers they come from humanities background, they come from non-engineering backgrounds, और वो कर लेते हैं. humanities BCom वाले लोग भी बहुत अच्छे से बहुत अच्छे अच्छे रैंक्स के साथ निकाले हैं. so I think ऐसा कोई एडवांटेज नहीं है. तो आप अपने मेहनत पे फोकस कीजिए and keep faith in your notes, in your preparation, and anybody can clear this exam. Now that you say this, तो मैं अपने एरिया की बात करता हूँ. So I teach for CSAT. तो मैं CSAT की पहली क्लास में ये पूछता हूँ कि आप में से कितने लोग को कैसा लगता है कि CSAT is the biggest hurdle between you and your dream. So like about roughly half the class raises their hand. And then I quickly ask that, so CSAT is a lot of things. So what in CSAT? Is it maths? The same number of people raise their hand. तो उनको ये लगता है कि engineers जो है वो maths में अच्छे होते हैं, तो CSAT is like a given and therefore they can devote that time to their weaker areas. तो इस बारे में आपको क्या कहना है? बोल मैं भी सकता हूँ, लेकिन मैं टीचर हूँ तो उन्हें लगेगा कि ये तो आइडियल बात करेगा, तो आप बोलिए. नहीं, ऐसा कोई नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है. आई एम टेलिंग यू दिस, देयर आर कैंडिडेट्स फ्रॉम top IITs, top NITs who have failed in CSAT and miserably failed in CSAT. ऐसा भी नहीं कि 1-2 margin से fail हुए हैं, like miserably they have failed in CSAT. Reason is that everybody needs practice. और मैं एक और चीज यहाँ पे highlight करना चाहूंगी. There are a lot of people from humanities background जो CAT में 98-99 percentile लेके बैठे हुए हैं. There are a lot of people from humanities background जो RBI grade B में हैं. And if you look at the paper of RBI grade B, you will realize कि हाँ ये तो CSAT से टफ ही है. It is something. हाँ. It is something और CSAT से टफ ही है, और वो humanities वाले लोगों ने निकाला हुआ है. तो ऐसा कुछ नहीं है that you come from humanities background तो maths should be your hurdle. ये मतलब एक psychology है. It's more like you telling yourself कि मैं humanities background से हूँ तो ये नहीं होगा. It's like a comfort. It's a psychological comfort. तो ये engineering का है इसीलिए उसका निकला, मैं humanities से हूँ इसीलिए मेरा नहीं निकला. But the fact is that you did not do the hard work. If you attend classes regularly, if you understand the concepts, then CSAT is not that big a hurdle. और एक चीज मैं ये भी कहना चाहूंगी aspirants को कि no doubt a lot of you might be fond of collecting materials for GS. For GS it might work also, history वगैरह के लिए. But CSAT के लिए please don't make that stupid mistake of collecting notes. Only collecting notes. क्योंकि CSAT में concepts को समझना बहुत जरूरी है. You can't be having 10 pages of notes about number system, HCF, PN, permutation combination. But if you don't understand, you'll not be able to do the question. Remainder theorem अगर नहीं समझ आ रहा है, अगर आपको HCF, LCM क्या है आपको नहीं पता, अगर आपको चलिए परमुटेशन कॉम्बिनेशन छोड़ दिया, क्यूब, डाइस, क्लॉक पे आते हैं, सो यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट. फ्रैक्शंस क्या है, आप इन चीजों को आप इग्नोर नहीं कर सकते. सो इफ यू आर नॉट गुड विद दैट, टेक द क्लास, प्रैक्टिस, मॉक्स भी लगाइए आप, then only you'll clear. And let me tell you, please don't take this pride. A lot of aspirants take this pride. जैसे अभी मई कितने मई को है ना एग्जाम, इस बार प्रीलिम्स. हाँ, मई को एग्जाम है. So soon after that
कब है एग्जाम? 24th में। 24th में, हाँ 24th मई को एग्जाम है। 25th में यू विल फाइंड स्टूडेंट्स कमिंग टू यू एंड टेलिंग, मैं लिख के दे सकती हूँ, दे विल टेल सर मेरे 110 नंबर है पेपर 1 में, सी सेट में सर मेरा रुक गया। And they'll take a lot of pride. And they will see CSAT as their enemy. हाँ, मतलब बेवकूफ होना अलग बात है, बेवकूफी में प्राउड फील करना वो मुझे लगता है वो एक अलग ही लेवल का फुलिशनेस है। That you knew that CSAT is a qualifying paper and you got so high marks in GS. You are getting 100, 110 जो बहुत मुश्किल होता है लोगों को। Absolutely. And you got that marks and then you made this stupid mistake of ignoring CSAT and you lost 1 full year. I met a lot of people. और ये मैं आपको गारंटी दे सकती हूँ, 24th का एग्जाम है ना, 25th में you will get at least 100 students coming and telling you this. मैं लिख के दे सकती हूँ with signature के साथ। I already got last year. I was not in Delhi on 25th में when the exam was there. Yes. और अगले वीक में जब मैंने ज्वाइन किया तो a lot of people are like, sir, I am in my 60s, but in GS I got 98. So GS is no problem. This is the problem. This is their tone. So तो बिल्कुल सही बात आप कह रहे हैं कि उसमें 5 नंबर कम हो जाते तो भी आपका सिलेक्शन नहीं रुकता, लेकिन यहाँ 2 बढ़ जाते तो आपका बहुत काम हो जाता। So this actually brings up the question on the table, which according to me is a very important question because I face this daily in my classes. A lot of students, and it's my assumption or inference आप कह सकते हैं, based on कि वो सारे कोचिंग एक साथ ज्वाइन कर लेते हैं, right? I don't say कि ये नहीं करना चाहिए या ये करना चाहिए, मुझे नहीं पता, but out of hurry they do that. They want to clear the exam in their first attempt or maybe in 2 years, within 2 years. और उस वजह से वो क्या करते हैं, सबसे पहले सारी कोचिंग ज्वाइन कर लेते हैं. So the biggest problem in my classes that I face that students जो है वो पढ़कर नहीं आ रहे हैं, कुछ students जो हैं, but those are the ones who needed the most the revision part or the practice part. तो इन स्टूडेंट्स मतलब किस टाइप, मैं ये बोलूँगा कि किस टाइप के स्टूडेंट्स को सारी कोचिंग एक साथ करना जचता है और किस तरह के स्टूडेंट्स को 1 at a time करना चाहिए, 2 at a time करना चाहिए? What do you have to say on that? देखिए, अगर if you think that you can manage GS and CSAT along with your optional, by manage you mean? By manage I mean if between two classes you get some time to study. हाँ, like you are getting 2 hours of GS, 2.5 hours. 3 घंटे की क्लासेस होती है as far as I remember. 2.5 to 3 hours. So 3 hours GS, then you give some 2 hours rest and then pursue your optional. And CSAT के लिए remaining 1.5 hours या 2 hours ज़्यादा ही होता है, but 1.5 hours if you can manage it that way. This is you're talking apart from the class practice, right? हाँ, मतलब एक साथ सब कुछ तो नहीं हो पाता है ना? तो आप 2 चीजों को प्रायोरिटाइज कीजिए, या तो आप अगर आपको लगता है कि योर ऑप्शनल इज नॉट डन, देन आई वुड सजेस्ट कि जीएस के साथ साथ आप पहले थोड़ा ऑप्शनल पे फोकस कीजिए. वंस यू मतलब अगर मैं साइकिल के हिसाब से बताऊं तो जून से लेके अप टू नवंबर तक या फिर दिसंबर तक you can focus on GS plus optional. After December or after November, I would suggest कि आप optional को थोड़ा साइड कर दीजिए, and then you focus on CSAT and GS, क्योंकि prelims का निकालना भी तो जरूरी है, optional तो उसके बाद आता है. So इसीलिए आप साइकिल के हिसाब से चलिए. The examination cycle जो होता है कि मई से लेके दिसंबर तक, in the first half I will complete all my GS and my optional. And from January, I will start with GS and CSAT prelims point of view. Cycle का follow करना जरूरी है. लेकिन इस चक्कर में like theoretically this sounds like the plan, but practically क्या होता है? कुछ लोग वो बस एक बार और आंसर राइटिंग एक बार फाइनल कर लें, so that satisfaction is not an objective thing, it's very subjective. Some people get satisfaction from their answers कि हाँ अब मेरा हो गया है, so वो साइकिल खिंच जाता है. They make it to like 26 January खत्म हो गया. So in the middle of February, I used to receive a lot of text messages कि sir now I am starting for CSAT and now I'm done with my optional practice and answer writing and all. तो अब मुझे बस 3 चैप्टर बता दीजिए जिससे मैं CSAT कर लूँ. मैंने कहा भाई मेरे को 3 चैप्टर पता होते तो मैं क्यों पूरा सिलेबस पढ़ाता. So वो जो है where should they put the break to the mains preparation, क्योंकि बहुत सारे लोग मेंस प्रिपेयर हुआ नहीं तो प्रिपेयर करके क्या करेंगे. मुझे लगता है उल्टा है. मैं यहाँ पे बहुत क्लियरली इस चीज को बताना चाहूंगी. Absolutely, please.
कि मेंस बाद में आता है. Please understand this. First, you have to clear prelims so that you are able, and you have to clear, not just clear prelims, you have to be in that list. 14,000 people का जो होता है 12 लाख से लेके 14,000 तक, तो you have to be in that 14,000. Only then you will be eligible to write mains. तो ऑप्शनल का जो भी आपने जितना भी, you can have the Shakespeare level of notes in optional, but if you fail CSAT, देन वो नोट्स उधर ही रह जाएंगे. वो जो आप बनाते हैं ना एकदम लाल पीला हरा करके, कुछ लोग बहुत सुंदर बनाते हैं, तो वो उसका इफ यू डोंट क्लियर सीसैट, इफ यू डोंट क्लियर प्रीलिम्स, उसका कोई मतलब नहीं बनता. सो एग्जामिनेशन साइकिल का फॉलो करना बहुत जरूरी है. एंड व्हेन आई से फॉलो करना, विच मीन्स दैट आफ्टर डिसम्बर, इफ यू हैव नॉट क्लियर प्रीलिम्स बिफोर, तो डिसम्बर, ज्यादा से ज्यादा डिसम्बर 15 तारीख, उसके बाद आपको फुल स्टॉप लगाना पड़ेगा. No matter where you stand in your, you say, even if you have little bit of syllabus incomplete for your mains, आप छोड़ दीजिए उसको. फुल स्टॉप लगाइए डिसम्बर 15 तारीख को कि यहाँ इससे ज्यादा आई विल नॉट. पहले चांस तो क्रिएट करें मेंस का, तब देखा जाएगा. इससे ज्यादा आई विल नॉट डू एनीथिंग फॉर मेंस. डिसम्बर 15 और डिसम्बर 20 इज माय लास्ट, क्योंकि उसके बाद मेंस से प्रीलिम्स तक आने में योर ब्रेन नीड्स टू रिवायर. क्योंकि मेंस की पढ़ाई करना बहुत आसान है, बिकॉज मेंस इज लाइक यू डोंट हैव टू रिमेंबर लॉट ऑफ रोट फैक्ट्स. मेंस इज मोर सब्जेक्टिव. ऑप्शनल पढ़ने में तो और मजा आता है, बिकॉज आप थिंकर्स, यू नो, यू फील वेरी स्कॉलरली अबाउट इट. यू नो, यू फील लाइक आई एम अ वेरी नॉलेजेबल पर्सन. यू नो, आप प्लेटो के बारे में बात करेंगे, सोक्रेटिस, प्लेटो एंड मैकियावेली एंड कौटिल्य एंड ऑल ऑफ दैट. यू फील दैट आई एम द डिफरेंट लेवल ऑफ फिलोसोफर नाउ. सो वो होता है, यू नो, इट्स इंटेलेक्चुअली वेरी स्टिमुलेटिंग. But then you have to also understand this is an exam and your top priority is to clear the exam and not gather knowledge. So December में whatever you have done till for your mains, may put a full stop there, and from mid-December pivot to prelims preparation. Or CSAT, if you think that CSAT is weak, then start preparing for CSAT, because CSAT requires, abhi to the level has also increased. So people who take CSAT very lightly, it's about wasting your years of effort for just one negligence. You know, वो कहते हैं ना, neglected spark burns the house. तो यही है CSAT. That neglected spark will burn down your years of preparation. जो भी आपने किया है, तो बहुत जरूरी है, इसको lightly नहीं लेना है. So with another example, I would say that CSAT is that gatekeeper जिसने अगर रोक दिया तो zillions की डील भी रुक जाएगी. जी. वो मीटिंग ही नहीं होने देगा जब CEOs की, तो वो वाली बात है. What do you have to say to the students, और वो कैसे पता लगाएं कि उनको एक पर्टिकुलर एरिया में, since I teach about CSAT, so let's talk CSAT, कि उनको जो बाकी लोग दे रहे हैं, मतलब people generally follow the crowd. Like a general clueless guy will follow the crowd. तो अगर वो रूममेट है एक बड़े से फ्लैट में 6 लोगों के साथ, 5 लोगों के साथ, या उसके दोस्त हैं 10 लोग दोस्त हैं, और सब लोग जनवरी 15 CSAT का बैच ज्वाइन कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं, मे बी वन ऑफ देम इज नॉट एट दैट लेवल विद द अदर 9. मे बी वो लोग शायद जनवरी 15 शुरू करके भी मई तक तैयार हो जाएंगे, लेकिन शायद आप ना हो पाओ. आई एम नॉट टॉकिंग पेसिमिस्टिकली, आई एम ट्राइंग टू टॉक प्रैक्टिकली. कुछ लोग हैं जिनको थोड़ा सा लैगिंग बिहाइंड है. सो weak is not the word that I ever want to use. Nobody is weak. हाँ, some people are lagging behind. Maybe आपके पास कुछ दूसरा पॉजिटिव है जो दूसरों के पास नहीं है. बट लेट्स टॉक इन पर्टिकुलर एरिया. ये CSAT है, अब आप इक्वेशन बनाना भूल चुके हैं. x और x स्क्वायर आपस में ऐड होंगे कि नहीं होंगे आपको ये नहीं पता है, राइट? x प्लस वाई, x माइनस वाई दिया है तो x का वैल्यू कैसे निकालें वो आपको नहीं पता है. सो जस्ट पुटिंग सम एग्जांपल्स कि अगर यहाँ पर प्रॉब्लम है, तो इन तरह के लोगों के लिए मुझे लगता है कि दैट द फ्लेयर ऑफ स्टडिंग अ सब्जेक्ट वो मिसिंग है. तो वो आने में ही कुछ 1-2 महीने लगेंगे शायद, और 1-2 महीने अगर आप उसमें लगा देंगे तब तक तो कोचिंग ओवर हो जाएगा. तो फिर आप कब पढ़ेंगे? एंड देन व्हेन दैट पैनिक हिट्स, से इन द मंथ ऑफ फरवरी और मार्च, यू रियलाइज कि ओ माय गॉड, आई मेड अ ब्लंडर. अब तो इतने बचे में टाइम में मेरा हो नहीं रहा है. तो ऐसे लोगों को डू यू थिंक कि पहले वन थिंग एट अ टाइम, पहले आप CSAT ही कर लो सो दैट यू आर इन द मेंटेनेंस मोड, एंड देन या क्या, या उनको भी लास्ट में करना चाहिए सो दैट ताजा रहेगा? फर्स्ट थिंग आई वुड लाइक टू मेंशन हियर कि पहले आप उठाइए PYQ CSAT का 2025 का ही उठा लीजिए या फिर 2023 का उठा लीजिए, एंड यू सी आप किस लेवल पे है.
And when I say किस level पे है, it's not that you got 60, how much? 66 marks is required for qualifying. So you got 68 marks and you are like very happy कि हाँ मेरा तो CSET में level. See if you can breach 100 marks or not, 100, 110 marks or not. If you are breaching that marks and you are breaching it for 3-4 PYQs, और वो भी नहीं रट्टा मार के बबल नहीं करना है, मतलब खुद से सॉल्व करना है, ठीक है. आई एम वेरी स्केयर्ड ऑफ गिविंग एडवाइसेस बिकॉज समटाइम्स पीपल ट्विस्ट इट. तो ये नहीं कि रट्टा मार के है ना आंसर की से मैच करके. नो, you solve it, and if you think that while solving the paper, or you can do some mock papers also of CSET, and you think that you are scoring around 100-110 marks, तो आप सोच सकते हैं कि ओके ये मेरा ठीक ठाक है, तो आई कैन डिले इट. मतलब मैं इवन इफ आई स्टार्ट CSET फ्रॉम फेब और मार्च, आई थिंक आई कैन क्लियर इट. बट टू दोज एस्पिरेंट्स जिनको लगता है कि मुझे नंबर सिस्टम में जो क्वेश्चन पूछा गया है HCF का, मुझे वो नहीं समझ आ रहा है, आई डोंट नो. हाँ, उसका ABC आई डोंट नो व्हाट इज द हाईएस्ट नंबर बाय व्हिच दिस नंबर वुड बी डिविजिबल. HCF का मुझे वो नहीं समझ आ रहा है. और अगर आप परमुटेशन कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन हो गया, और मे बी क्लॉक कैलेंडर रिमाइंडर थ्योरम का क्वेश्चन हो गया, एंड यू थिंक दैट यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग इट, देन इट्स ऑलवेज बेटर टू बी सेफ देन टू बी सॉरी. सो then first you do CSAT, you cover up all the questions, I mean all the concepts properly, and then you shift to other. अगर आपको ज़रूरत पड़े कि मुझे ये भी ठीक करना है GS का, पहले आप CSAT कर लीजिए, सिक्योर हो जाइए, then आप GS कीजिए और CSAT को साथ में प्रैक्टिस करते रहिए. But don't ignore, if you think that you are not comfortable with those concepts, don't push it till March end कि उसके बाद देख लेंगे, क्योंकि नहीं होगा देन. नहीं होगा. और सबके एप्टीट्यूड अलग अलग होते हैं. इफ यू डोंट कंपेयर योरसेल्फ विद अदर्स, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू CSAT. बाकी में तो नहीं करना चाहिए, CSAT में बिल्कुल नहीं करना चाहिए, बिकॉज you will find all sorts of aspirants. Some people will always have a natural advantage in aptitude. उनका ब्रेन का वायरिंग ही ऐसा है. Even if they don't do, they will not do CSAT. They just before the exam, 1 week before the exam, they will solve 3 papers and they will score 100 marks in CSAT. ऐसे भी लोग हैं. बिल्कुल. But then if you follow that guy and you are not comfortable with CSAT, you will fail the exam terribly. तो ये नहीं करना चाहिए. You know, you should evaluate yourself, not compare with others. Evaluate yourself कि आपकी क्या potential है. अगर आपको लगता है कि वो सब नहीं है, आपको A+B आपको नहीं समझ आ रहा है, you don't know whether, जैसे आपने बोला कि x² और x add नहीं होता है, वैसे फैक्टराइजेशन आपको नहीं पता, प्राइम फैक्टराइजेशन का, then better आप मतलब पहले से ही तैयारी शुरू कर दीजिए. पहले से करना चाहिए. Okay, a trick question for you. Choose between these two bads. One, कि मेंस का प्रिपरेशन तो हुआ नहीं, तो प्री भी नहीं लिखेंगे. दूसरा, मेंस को छोड़ो, पहले पता है कि इस साल हम नहीं निकाल रहे एग्जाम, बट एटलीस्ट प्री निकाल दिया. गारंटीड फेलियर इन मेंस इज गारंटीड बिकॉज यू हैव नॉट प्रिपेयर्ड. तो मेंस का प्रिपरेशन नहीं हुआ, वही करते रहे, पहले वो पक्का कर लें, भले प्री भी ना हो, या फिर छोड़ो पहले प्री निकाल लो. रिजेक्शन इन बोथ द केसेस फॉर दिस अटेम्प्ट. विच वन वुड यू पिक फॉर समबडी, और मे बी से यू वर इन दैट पोजिशन, तो आप इन दोनों में से कौन सा पिक करते एंड क्यों? Okay, that's a tough question now. But I think I would go with the second one. कि अगर it's okay, you're not clearing mains, लेकिन अगर आप pre के लिए भी if you have studied sincerely ना, and you got one opportunity to write mains, that experience will actually benefit you. तो आप अगले attempt में दोनों निकाल लेंगे, ये जरूरी है. Because this जो पहला ऑप्शन है कि क्योंकि मेंस नहीं होगा तो प्री का भी आई विल नॉट स्टडी, दैट इज बेसिकली प्रोक्रास्टिनेशन. यू आर जस्ट लाइंग टू योरसेल्फ. बेसिकली यू हैव नॉट प्रिपेयर्ड एनीथिंग, आपका कोई प्रिपरेशन नहीं है. बट इन द सेकंड, वैसे तो दोनों ही वर्स्ट केस है, ठीक है, एंड यू टोल्ड मी कि दोनों में nobody wants any of these. nobody wants any. But if I have to choose between these two, I would pick the latter. कि क्योंकि अगर ऐसा होगा ना, कम से कम the candidate will study something. And if he studies something this year, then by God's grace, if he's, and also his hard work, there is a high chance that he might clear something in the next year. ये है. I'm so glad, Lisa, that you said that. I also would always choose the second one, hands down. I would like to add to your reason. I would also say that अगर आप प्री क्लियर करते हो, गारंटीड दैट आप मेंस नहीं निकाल पाओगे, बट ये जो प्री क्लियर करने का जो बूस्ट है,
वो आपको बहुत हेल्प करेगा बोथ इन मोटिवेटिंग यू फॉर प्रिपेयरिंग एंड और इवन इन द कभी एग्जामिनेशन और हॉल. कभी कभी तो लोगों का ऐसा होता है, दे थिंक कि मेंस के लिए कोई प्रिपरेशन नहीं है, आई हैव क्लियर प्रीलिम्स बट आई हैव नो प्रिपरेशन फॉर मेंस, आई विल नेवर क्लियर मेंस, दोज आर द फर्स्ट वंस टू गेट द इंटरव्यू कॉल. ऐसा भी होता है. हाउ सो? नहीं मतलब हो जाता है, क्योंकि हाँ. मेंस का ऐसा है ना, अगर आपने इफ यू हैव स्टडीड प्रॉपरली एंड इफ यू हैव दैट इंटेलेक्चुअल एबिलिटी to kind of interlink between concepts, interlink between papers, you are habituated to reading the newspaper, you have made भले ही खराब नोट्स है लेकिन फिर भी आपने कुछ तो बनाए हैं, and if you write it properly, मतलब कभी कभी निकल जाता है. कुछ लोगों का ऐसे निकला भी है, they have reached to the interview stage. Although luck has less to do, but beginner's luck कहते हैं उसको. मतलब हाँ, beginner luck का हो सकता है, लेकिन ऑलवेज थिंक पॉजिटिव ना, क्या पता निकल ही जाए. क्या पता निकल जाए. एग्जैक्टली. ओके, ग्रेट. आइडियल नहीं है इसका मतलब ये नहीं कि मेंस की तैयारी नहीं करनी है, सिर्फ प्रीलिम्स पे ही करना है. मेंस यू हैव टू प्रिपेयर फॉर मेंस आल्सो, ऑप्शनल एंड ऑल, बट जस्ट बिकॉज आई एम नॉट बिकॉज यू विल नेवर बी 100% prepared for UPSC. No matter how many years you invest, even if you are investing 20 years in UPSC, मैं तो यही बोलती हूँ 20 साल भी दे दोगे ना तब भी after investing 20 years when you write your prelims ना, then also you will have that same fear, same anxiety कि पता नहीं निकलेगा या नहीं निकलेगा, because it's vast, anything can be asked, and no matter how much you study, there will be questions which you are unprepared for. तो ये हमेशा रहेगा. तो इसीलिए आप फोकस कीजिए और वो नहीं मतलब डोंट प्रोसीड विद दैट काइंड ऑफ नेगेटिविटी कि ये नहीं होगा या फिर मेरा प्रिपरेशन नहीं है, बिकॉज प्रिपरेशन कभी नहीं होता है, किसी का नहीं होता है 100%. हाँ, दिस इज वेरी सब्जेक्टिव. कौन कहता है कि मतलब मेरे इतने साल देने के बाद भी कहता हूँ कि तैयारी हो गई, मैं बोलूँगा नहीं. Yeah, that happens. Still, but you should be able to score. Okay, enough about CSAT. So, very curiously, personally, I am interested to ask you about your choice for your optional. You are an engineer and from a very good college. So generally, जैसा कि मार्केट में फैला हुआ है कि इंजीनियर्स जो हैं वो तो टेक्निकल सब्जेक्ट लेते हैं. टेक्निकल से मेरा मतलब टेक्नोलॉजिकल नहीं है. टेक्निकल से मतलब जिसमें थोड़ा सा एनालिसिस हो, यू नो, इंजीनियर्स मोस्टली, आई मे बी रॉन्ग, गो फॉर साइकोलॉजी, ज्योग्राफी और मे बी दिस काइंड ऑफ. सो आपका PSIR लेने के पीछे मतलब योर पर्सनल मोटिवेशन एंड चॉइस. हमारे विद इन इंजीनियर्स हम एक जोक शेयर करते हैं दैट वी आर गुड इन एवरीथिंग एक्सेप्ट इंजीनियरिंग. ट्रू, इट्स नॉट अ जोक. इंजीनियर्स आर गुड इन एवरीथिंग एक्सेप्ट इंजीनियरिंग. तो बट जोक्स अपार्ट, जो मैंने PSIR मैंने लाइक जैसे मेरा एक क्लियर था कि ऑप्शनल में नहीं फंसना है, क्योंकि व्हाई आई एम सेइंग दिस, बिकॉज प्रीलिम्स हैव बिकम वेरी टफ. So by the time a candidate clears prelims, sometimes it happens that he or she is writing his third attempt, fourth attempt, sometimes even fifth attempt. I know candidates who are who got the opportunity to write their first mains in their fifth attempt. तो वहां जाने, when you are in a higher attempts, उसके बाद optional change करना it's a big challenge. हाँ. फाइनेंशियली नहीं, इमोशनली, मेंटली, एकेडमिकली इट्स अ ह्यूज चैलेंज. मतलब क्योंकि इतना आपने इन्वेस्ट किया है, उसके बाद अचानक से ऑप्शनल चेंज करना, बिकॉज एवरी ऑप्शनल हैज क्वाइट अ सब्सटेंटिव. सोशियोलॉजी छोटा ऑप्शनल है, लेकिन उसमें भी यू डोंट गेट मार्क्स जस्ट बाय राइटिंग कचरा आंसर्स. उसमें भी यू हैव टू पुट थियरी, स्कॉलर्स, थिंकर्स, एग्जांपल्स, तभी जाके मार्क्स आते हैं. वॉल्यूम अगर देखा जाए तो कंपेयर टू PSIR छोटा है, बट देन एफर्ट हर ऑप्शनल में लगता है. सो मैं कैंडिडेट्स को ये एडवाइस करना चाहूंगी, फर्स्ट व्हेन चूजिंग योर ऑप्शनल, मेक श्योर दैट दिस ऑप्शनल इज मतलब उसका पास्ट परफॉर्मेंस कैसा चल रहा है. दैट ऑप्शनल इज दैट ऑप्शनल हेल्पिंग यू क्लियर द मेंस विद इन द फर्स्ट अटेम्प्ट इटसेल्फ, क्योंकि ऑप्शन इज अ डिसाइडिंग फैक्टर. अगर आपका ऑप्शनल खराब जाता है ना, यू विल नेवर मेक इट टू द लिस्ट. ये बात सच है, रियलिटी है. तो ऑप्शनल ऐसा लीजिए बाय एनालाइजिंग द ट्रेंड्स कि आप निकाल सके उसको, हो सके तो एक ही बार में निकल जाए. सेकेंडली, सी द अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज एंड हाउ मच ओवरलैपिंग इट हैज with the GS papers. So some people are very good with science based optionals. In fact, I do have a 9.2 CGPA in my civil engineering, which is considered a very high CGPA. But मैंने देखा कि
सिविल का इसका कोई ओवरलैप नहीं है एंड द अमाउंट ऑफ एनर्जी आई वुड इन्वेस्ट इन सिविल इंजीनियरिंग, अगर मैं उसको ऑप्टिमाइज कर सकूं, इफ आई टेक PSIR आई विल बी ऑप्टिमाइजिंग द एफर्ट बिकॉज PSIR का पेपर 2 के साथ वी हैव लॉट ऑफ commonality इन द बिटवीन PSIR एंड पेपर 2. एथिक्स में भी काम आता है और ऐसे में भी नाउ डेज देयर इज अ ट्रेंड ऑफ राइटिंग फिलोसॉफिकल एसेज, तो वहाँ भी PSIR ऑप्शनल एक्चुअली हेल्प्स. तो इसीलिए मैंने सोच के मुझे लगा कि PSIR लेना चाहिए. अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट विच एवरीबडी सेज दैट यू शुड हैव इंटरेस्ट, आई डू हैव इंटरेस्ट, मतलब मुझे इंटरेस्ट बनाना पड़ा बिकॉज ऑब्वियस फैक्ट्स, यू नीड टू क्लियर द एग्जाम, दैट शुड बी योर फर्स्ट प्रायोरिटी. इंटरेस्ट भी होना चाहिए लेकिन थोड़ा प्रैक्टिकली भी आपको, इमोशनली नहीं कि इमोशनली मुझे ये वाला ऑप्शनल पसंद है. लाइक फॉर एग्जांपल यू आर कॉमर्स बैकग्राउंड, हो सकता है कि किसी जमाने में आपने सोचा था कि आई विल गो टू मेडिकल बट यू डिड नॉट गेट MBBS, सो नाउ यू परसूड समथिंग एल्स एंड देन यू आर लाइक नाउ आई वांट टू स्टडी मेडिकल साइंस, आई विल टेक मेडिकल साइंस ऑप्शन. वो नहीं हो पाएगा फॉर समवन हु इज नॉट विद दैट बैकग्राउंड. मेडिकल साइंस आप तभी ले पाएंगे इफ यू हैव डन योर MBBS. वैसे तो यूपीएस ने कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं डाल के रखा है, बट देन ऑल्सो तो वही ना, मतलब आपको प्रैक्टिकली सोचना पड़ेगा कि कौन सा ऑप्शनल आप हजम कर सकते हैं एंड कौन सा ऑप्शनल विल हेल्प यू टू क्लियर मेंस विद इन द वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट. क्योंकि क्या है, बाय द टाइम यू राइट प्रीलिम्स, बाय द टाइम यू क्लियर प्रीलिम्स, आजकल प्रीलिम्स द डिफिकल्टी लेवल हैज इंक्रीज्ड, कट ऑफ हैज आल्सो इंक्रीज्ड. I think this time we are seeing the highest cutoff in the last 4-5 years. So by the time you are in 4th, 5th attempt, you can't make that mistake. Mentally, emotionally, बहुत draining हो जाएगा. You will get caught up in this vicious cycle if you are not good with your optional. तो ऐसा नहीं है, मैं objectively तो नहीं बता पाऊंगी कि कौन सा optional लेना है. But when you make that decision, make sure you are able to digest the subject and make sure it is going to help you clear effortlessly. तो कोई न्यू एस्पिरेंट जो है, जिसने अभी जज्बा बस पैदा किया है कि मुझे सिविल सर्विसेज में जाना है, बिल्कुल पॉसिबल है, फेयर है कि उसने अभी तक अपना ऑप्शनल डिसाइड नहीं किया है. सो ऑन व्हाट बेसिस, मतलब ज्यादातर स्टूडेंट्स को मैंने देखा है एंड इट मे वर्क फॉर सम पीपल, बट आई डोंट थिंक इट्स एन आइडियल वे टू चूज एन ऑप्शनल बेस्ड ऑन द स्कोप, सो कॉल्ड, आई एम पुटिंग इन अंडर कोट्स, स्कोप, कि इस ऑप्शनल में इस बार ज्यादा नंबर मिले हैं तो चलो ये ऑप्शनल ले लेते हैं. तो प्रैक्टिकलिटी जो आपने वर्ड यूज किया, वो नए एस्पिरेंट्स जो हमारे हैं, जो अब शुरू करने जा रहे हैं या अभी कोचिंग ज्वाइन करने के मोड में है या सेल्फ प्रिपरेशन मोड में है या प्री वर्क करने के मोड, तो ऑन व्हाट बेसिस शुड दे, मतलब उनको कैसे पता चलेगा कि डू यू थिंक दैट दे शुड डू GS कोचिंग फर्स्ट, और हो सकता है कि वो पढ़ते पढ़ते उन्हें पता चले, या पहले डिसाइड करना चाहिए और फिर आपको अपना सीरियस प्रिपरेशन शुरू करना चाहिए? मतलब आई वांट यू टू हेल्प देम, जो लोग चाहते हैं बहुत करना और उनका डेडिकेशन भी हाई है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन वो डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं. सो ऑन व्हाट बेसिस, और मे बी दे आर टॉर्न बिटवीन 2-3 ऑप्शनल्स. सो जैसे इन दिस केस आई वुड लाइक टू सजेस्ट कि एक तो आप अपना बैकग्राउंड देखिए, आप कौन से बैकग्राउंड से आते हैं. सो इफ यू थिंक दैट सपोज यू हैव डन ग्रेजुएशन इन हिस्ट्री or maybe you have done your graduation in geography, और अगर आपको लगता है कि I have a very good command in that subject and I have all the notes and I think I can do justice to that optional, then I think you can pursue your graduation subject. Secondly, अगर आपको लगता है especially this is for engineers, अगर आपको लगता, because we are never confident in our subject. हाँ, absolutely. ये bearing of few people, few proportion of people who appear in their subject, and there are a lot of toppers also. Last year AIR won, he appeared in his own subject. तो ऐसा नहीं है कि सारे engineers को नहीं पसंद, but most engineers they usually don't appear in their branch specific subject. So in that case, if you want to change to humanities, तो I will say that you need to reflect on it. कि how are you interested in that optional? Do you think you can do justice to that optional? How is this optional performing in the last 4-5 years? And do I have adequate resources? How much is the overlap with GS? तो ये सब सारे फैक्टर्स को लेके एक बहुत स्ट्रैटेजिक डिसीजन लेना होता है अपने ऑप्शनल को लेके, बिकॉज ऑप्शनल 500 मार्क्स, इट्स अ मेक और ब्रेक थिंग फॉर यू. और मैं बार बार यही चीज स्ट्रेस करूंगी, बिकॉज नाउ डेज देर आर लॉट ऑफ एस्पिरेंट्स जो एक ही बार में प्रीलिम्स निकाल देते हैं. देर आर लॉट ऑफ एस्पिरेंट्स जिनको प्रीलिम्स में इतना दे डोंट फेस टू मच ऑफ डिफिकल्टी, but then also there are aspirants who struggle with prelims. I was one of them, and I know a lot of people, they struggle with prelims.
एंड बाय द टाइम दे क्लियर इट दे आर इन द हायर अटेम्प्ट्स. तो उनके लिए तो मैं जरूर बोलूं कि आप सोच समझ के लीजिए, बिकॉज वंस द गेट इज ओपन यू नीड टू क्लियर इट, अदरवाइज यू आर गेटिंग कॉट इन द साइकिल. ये बात सच है. Okay. Now a question on a very different note. वो एक या दो कौन से sacrifices थे जो आपको knowingly करने पड़े and it was hard to clear this exam? जी जी. We are open for any answer. देखिए, सैक्रिफाइस तो इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ. हाँ. मतलब यू कांट हैव एवरीथिंग टुगेदर. तो कहीं ना कहीं मैं सैक्रिफाइस वर्ड नहीं यूज करूंगी. आई वुड लाइक टू यूज द वर्ड प्रायोरिटी. मतलब आप एक फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ में आपको यू हैव टू ऑर्गेनाइज योर लाइफ कि ये मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है. तो जैसे अगर फॉर एस्पिरेंट्स एक टाइम पे मैंने भी किया था. सो व्हेन वी आर प्रिपेयरिंग, सो योर फर्स्ट प्रायोरिटी इज योर प्रिपरेशन. बिकॉज मोस्ट ऑफ द एस्पिरेंट्स, ये बात सच है, वर्ड यूज करने में खराब लगता है, बट दे आर अनएम्प्लॉयड. ये बात सच है. बेरोजगार इज द वर्ड. जो भी है, जैसा भी है, बट ये सच है. सो योर टॉप प्रायोरिटी इज टू क्लियर द एग्जाम एंड गेट इनटू सर्विस. क्योंकि वो you can't be बेरोजगार for 10 years, right? It's a reality. You need to have that reality check. So first priority, you have to prioritize your life. So your first priority should be your academics, your preparation, clearing the exam. तो उसके लिए जैसे आपने बोला sacrifice नहीं है, but उसके लिए आपको थोड़ा बहुत चीजों को avoid करना पड़ेगा. For example, whether it's using too much of social media or social gathering, या फिर जो भी हमारे कंफर्ट होते हैं, जो हमें लगता है कि करके अच्छा लगता है. सो ऑल ऑफ दीज डिस्ट्रैक्शंस को थोड़ा आपको टोन डाउन करना पड़ेगा. नाउअडेज इट्स वेरी डिफिकल्ट टू लीव सोशल मीडिया. सबको फोन स्क्रॉल करना पसंद है, सबको इंस्टाग्राम, फेसबुक, एक्स पे एक्टिव रहना सबको पसंद है. बट फैक्ट इज दैट इस सबको थोड़ा बहुत टोन डाउन करना पड़ेगा. एवरीबडी लाइक्स अटेंडिंग पार्टीज, गोइंग टू पब्स एंड चिलिंग आउट. लेकिन आपकी प्रायोरिटी क्या है? And priority for an aspirant is to get a job as quickly as possible, because now things are changing. Artificial intelligence is real. People are valuing, recruiters are valuing skills over degrees. ये reality है job market की. Layoffs are happening. The world is in a geopolitical flux. किसी को नहीं पता क्या होगा. So considering all of these things, आप अपने प्रिपरेशन को प्रायोरिटाइज कीजिए और जितना जल्दी हो सके उसको निकाल के यहाँ से चले जाइए आप. यू डोंट मेक दिस राजेंद्र नगर, मुखर्जी नगर और जो भी है ना स्टूडेंट हब, डोंट मेक दिस योर परमानेंट होम. ये टेम्पोररी है और इसको टेम्पोररी ही रहने दीजिए. उसको 10 साल का पीआर परमानेंट रेसिडेंट मत बनिए आप यहाँ पे. बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं. यू आर इन अ बेटर पोजीशन टू से दिस बिकॉज आई नेवर रोट दिस एग्जाम, सो मेरी बातें फिर थ्योरेटिकल उन लोगों को लगती हैं. तो आप बताइए कि कुछ स्टूडेंट्स हैं जो अपने आप को 5 साल देते हैं. दैट्स फेयर, दैट्स देयर डिसीजन, एंड आई थिंक 5 years इनफ ऑल्सो. तो अपने आप को अगर वो कोई स्टूडेंट 5 years दे रहा है, फिर भी अपने अटेम्प्ट्स सो कॉल्ड सेव कर रहा है, वो 3 साल तक एग्जाम ही नहीं लिख रहा है. अब किसी ने ये सोचा हुआ है कि नहीं, मैं तो जब निकालूंगा तो पहले ही अटेम्प्ट में निकालूंगा, भले मैं 4 साल बाद अपना पहला अटेम्प्ट दूं. मुझे लगता है कि उनको, अगर उनके पास 5 ही साल हैं और 6 अटेम्प्ट्स हैं, तो व्हाट इज स्टॉपिंग यू फ्रॉम राइटिंग द एग्जाम? आई थिंक मे बी दे आर स्केयर्ड ऑफ दैट सिचुएशन कि इंटरव्यू मुझसे पूछेंगे कि भाई तुम तो 5 अटेम्प्ट पर आए हो, मेरे पास तो पहले अटेम्प्ट वाला भी है. शायद वो उससे डरते हैं. व्हाट डू यू वांट टू से टू दोज पीपल हु आर नॉट राइटिंग अटेम्प्ट बिकॉज दे आर कंफ्यूज्ड? मैं भूल जाऊंगा इसलिए मैं दूसरा क्वेश्चन भी अभी बोल देता हूँ. देयर इज अ लॉट ऑफ कंफ्यूजन और लोगों को लगता है कि नोबडी टॉक्स सीरियसली इन एन इंटरव्यू बिकॉज कोई कह रहा है कि मैं तो 3 घंटे ही पढ़ता था रोज और मेरा एग्जाम निकल गया. कोई कह रहा है 12-13 घंटे पढ़ते थे. बिकॉज़ वैसे रील्स ज्यादा वायरल होते हैं. हाँ, वायरल. you will always find those reels जहाँ पे somebody will say that I cleared prelims by just studying 10 days. 97K views. Then you will say, then you'll find another reel where someone will say, I never studied anything. I went to the exam. Somebody told me ऐसे ऐसे आंसर लिखना है
और मैं ऐसे I wrote the answer, the paper went well, I came back, you will have 1 lakh views on that. मतलब you know the, क्योंकि हमारे क्या है ना, एक एटमॉस्फेयर है विद इन कॉम्पिटिटिव सर्कल्स कि आप बिना मेहनत करे अगर आप if you can achieve that, it is more glorified. I don't know why it is. Sometimes like that I have achieved this feat without even putting the effort. तो उस चीज को लोग ज्यादा वर्शिप करते हैं. और मतलब ऐसा भी नहीं है that they are not saying that people don't appreciate hard work, but ऐसा कभी कभी हो जाता है ना, the one who says that कि मैंने तो कुछ सोचा ही नहीं था, मैंने किया ही नहीं, I didn't do anything and I just cleared the exam, and then plus some movies and web series painting a very wrong picture. Very wrong picture and people get influenced by it, उसके views आ जाते हैं and people think कि ऐसा ही होता है. ऐसा नहीं होता है. UPSC is a rigorous exam. And why I'm saying this, because my credentials here, I have a 92.2% in my 10th, I have a 96% in my 12th, and I have a 9.2 CGPA in my BTech. So I think despite having that, it took me time to finally understand. तो ऐसा भी नहीं है कि हवा में निकल जाता है, हवा में नहीं निकलता है. एंड व्हेन दोस रील्स गो वायरल, दे एक्चुअली पेंट अ वेरी रॉन्ग पिक्चर अबाउट द यूपीएससी एग्जाम. इट्स अ रिगोरस एग्जाम एंड इट्स नथिंग कैन सब्स्टिट्यूट हार्ड वर्क. सो डोंट गेट इन्फ्लुएंस्ड बाय दैट कि 10 दिन पढ़ के प्रीलिम्स निकाल दिया. डोंट बी इन्फ्लुएंस्ड बाय सच रील्स एंड बाय वेब सीरीज एंड जो भी जहां से भी आपको ऐसे मिस इन्फॉर्मेशन मिलता है, प्लीज इग्नोर इट. पहले तो मैं ये बोलना चाहूंगी. सेकेंड थिंग, मतलब ऐसा है, इफ यू फोकस इट इन अ ऑर्गेनाइज्ड मैनर, अगर आप प्रिपरेशन को करते हैं तो मुझे लगता है ये एग्जाम हो सकता है. उसको इतना आप नेगेटिवली मत लीजिए चीज़ों को कि कभी नहीं होगा. आप प्रिपरेशन कीजिए, अपने नोट्स पे भरोसा रखिए एंड यू आर गुड टू गो. मैं तो यही बोलूँगी. उन स्टूडेंट्स को आपको क्या कहना है जो बहुत डिस्करेज हो जाते हैं बिकॉज व्हेन दे फोकस ऑन वन थिंग दे लूज टच ऑन, और ये भूल जाते हैं जो पहले 1 महीने पहले पढ़ा था. सब चीज़ों को तो एक साथ रोज़ रिवाइज करना पॉसिबल नहीं है. तो सारी चीज़ें दिमाग में भी रहें. व्हाट इज़ द रिवीजन स्ट्रैटेजी दैट यू वांट टू सजेस्ट टू देम कि सब चीज़ें रिवाइज भी होती रहे, कवर भी नया होता रहे, पिछला भूले भी नहीं. दैट्स टू मच वर्क, बट दैट्स एक्चुअली अ टेस्ट ऑफ मैनेजमेंट. सो व्हाट इज़ योर टेक ऑन दैट? माई टेक ऑन दैट इज, वंस यू आर डन विद द सब्जेक्ट, आप शॉर्ट नोट्स बनाइए. व्हेन आई से शॉर्ट नोट्स मतलब वो नहीं है जो आप कॉपी पेस्ट करके कि लक्ष्मीकांत, आई हैव रेड लक्ष्मीकांत, नाउ आई विल कॉपी दैट टेक्स्ट ऑफ लक्ष्मीकांत विथ माय ओन हैंडराइटिंग इन माय नोट्स. वो वाला नहीं है. दैट इज नॉट शॉर्ट नोट्स. शॉर्ट नोट्स इज यू हैव रिवाइज समथिंग मल्टीपल टाइम्स एंड यू फेल्ट दैट ये जो भी है, ये कुछ पोर्शंस है जहाँ पे आई एम रिपीटेडली फॉरगेटिंग, मुझे याद नहीं हो रहे ये सब पॉइंट्स. तो दोज आर द थिंग्स आई बिलीव कि आप नोट्स पे बनाइए और उसको बार बार रिवाइज करते रहिए एंड दैट इज सफिशिएंट. तो इन दिस प्रोसेस यू विल बी वेरी मच इन टच विद द सब्जेक्ट एज वेल एज यू विल नॉट फॉरगेट द अर्लियर नोट्स विच यू हैव मेड. तो शॉर्ट नोट्स का होना जरूरी है, क्विक रिविजन पर्पस. और उसको कचरे से नहीं भरना है. व्हेन आई से कचरा मतलब जो ऑलरेडी है उसी का कॉपी पेस्ट टेक्स्ट एडिटिंग करके वो नहीं करना है. शॉर्ट नोट शुड ओनली कंटेन दोज इन्फॉर्मेशन विच यू थिंक दैट यू आर नॉट एबल टू रिकलेक्ट, और यू थिंक दैट लास्ट मिनट एग्जाम हॉल से when you're entering the examination hall 5-10 minutes before entering the examination hall you feel that you need to quickly brush up those points. So वो important है कि कम में ज्यादा दिमाग में आ जाए. मतलब ऐसा नहीं कि कॉपी पेस्ट ही कर रहे हैं, 3-4 कॉपी पेस्ट आइडेंटिकल फोल्डर बना दिया है, ये नहीं करना है. एक क्वेश्चन, आखिरी 2 क्वेश्चंस. एक क्वेश्चन जिसमें मैं बहुत इंटरेस्टेड हूँ बिकॉज I am always hurting about the over glorification of a certain word. जैसे we all keep talking about hard work, the achieving sports persons, the people who qualify an exam, the entrepreneurs, everybody talks about hard work. लेकिन मुझे लगता है कि एक वर्ड के बहुत सारे वर्जन्स हैं. हार्ड वर्क जब आप कहते हैं, what do you mean by that hard work? मतलब कहने का कि if you are not learning from your failures, keep repeating the same thing. In a way, that is also hard work because you are putting in, you're burning midnight oil and you're putting in a lot of efforts, but you're not learning from your mistake. This is just one example I wanted to put. So hard work से आपका क्या कहना है? What hard work is for you? हाँ, ये तो और हार्ड वर्क वर्सेस स्मार्ट वर्क, और व्हाट इज स्मार्ट वर्क. जैसे कुछ लोग स्मार्ट वर्क को गलत नाम दे देते हैं कि जुगाड़ कर रहा है ये, तो हार्ड वर्क इज द बेस्ट पॉलिसी. सो इस पर कुछ प्रकाश अगर आप डालना चाहें.
देखिए, I'll say this with an example. Hard work ऐसा है, like for example, you are preparing a subject, say polity. Now I'll tell you what is hard work. Hmm. You are preparing for polity. You have read Lakshmikant. Hmm. You have read D.D. Basu. जी. You have read Subhash Kashyap. And now you don't remember anything. You have no notes. Your output is literally zero. If somebody is giving you a test series and वहाँ पे आपसे 10 नंबर 15 नंबर के क्वेश्चंस, you are not writing anything, you are just writing कचरा there. बट ये 3 किताब पढ़ने But ऑलरेडी you have- 6 मंथ्स का हार्ड वर्क जा हाँ, चुका है. 6 months का हार्ड वर्क जा चुका. You have read everything. You have read D.D. Basu, Subhash Kashyap, Lakshmikant, और एक आध और ऐड कर लीजिए. You know, you have read 5 books. That is hard work. But that hard work will not yield any result. You have done hard work. बहुत 3-3 4-4 किताब पढ़ना, वो भी इतना है ना, ये मेहनत का काम है ये. And patience. And then there is another person, what he does, वो क्या करता है, वो लक्ष्मीकांत, he reads लक्ष्मीकांत, उसने देख लिया एक बार ऊपर ऊपर से, फिर उसने उठाया PYQ, उसने देखा कि प्रीएम्बल से क्वेश्चन आ रहे हैं, उसने देखा कि फंडामेंटल राइट्स से क्वेश्चन आ रहे हैं बहुत सारे, आर्टिकल 21 पे 2-3 बार क्वेश्चन पूछा गया था. देन ही सेज कि अच्छा, प्रेसिडेंट गवर्नर पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट 2023 प्रीलिम्स में आया हुआ है. ही शॉर्टलिस्टेड ऑल द टॉपिक्स कि ये जो ब्रॉड थीम्स है, या फिर इकोनॉमिक्स का देख लीजिए कि इन्फ्लेशन के क्वेश्चंस आते हैं, जीडीपी के क्वेश्चंस आते हैं. सो ही शॉर्टलिस्टेड ऑल द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कि ये क्वेश्चन पूछा जाएगा. एंड नाउ ही हैज ऑल द शॉर्ट नोट्स आल्सो प्रिपेयर्ड ऑफ ऑल दीज टॉपिक्स, और उससे एंड प्लस ही हैज आल्सो रिवाइज्ड इट मल्टीपल टाइम्स. नाउ यू गिव दिस गाय द क्वेश्चन पेपर and he is scoring that paper very well. He is in the list with less labor than this guy. He has read 5 books on polity, 5 books on economy, 5 books on geography. Savinder Singh se leke pata nahi kya kya he has read everything. Majid Hussain and everything for GS. And this guy, he just follows his teacher for any subject, and then थोड़ा current affairs देख लिया, PYQs को एनालाइज कर लिया, निकाल लिया उसने. तो ये होता है हार्ड वर्क और ये होता है स्मार्ट वर्क. स्मार्ट वर्क, दिस इज द एग्जैक्ट डिफरेंस. आई थिंक इससे ज्यादा मैं क्लियरली नहीं एक्सप्लेन कर पाऊंगी द डिफरेंस बिटवीन हार्ड वर्क एंड स्मार्ट वर्क. तो व्हेन आई से कि स्मार्ट वर्क करना है, वो दूसरा वाला करना है, द सेकेंड वन, कि आपने PYQ, यू स्टडी वन स्टैंडर्ड बुक, you do the PYQs, and then you do the mocks, and you are done, sorted. So hard work without the required tools, without a correct approach, without the correct guidance might fetch nothing. Might fetch nothing. हाँ, वो सांप सीढ़ी में 98 का सांप काटने वाला, हाँ, वो हो exactly, exactly. Okay, last question for you, and thank you for being so patient with me. How important is the emotional intelligence to crack an exam as prestigious as this? Like IQ की सब बात करते हैं, हार्ड वर्क की सब बात करते हैं, ये दोनों चीजें अपने आप में अपनी जगह हैं, सही हैं, सब्जेक्टिव हैं. इमोशनल इंटेलिजेंस इज समथिंग जिसके बारे में कम लोग बात करते हैं. इमोशनल इंटेलिजेंस बहुत ही ब्लंट एग्जाम्पल वुड बी, किसी ने बहुत पढ़ा, मॉक्स भी लिखे, सब कुछ, लेकिन एक्सपेक्टेशन फ्रॉम द एग्जाम इज सो हाई एंड एक्सपेक्टेशन फ्रॉम वन ओन सेल्फ इज सो हाई कि एग्जामिनेशन हॉल में घुसते ही फेंट हो गए या ब्लैकआउट हो गया. सो दैट्स वेयर योर सेल्फ टॉक, योर सेल्फ बिलीफ, योर इमोशनल इंटेलिजेंस कम्स. दैट इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट. सो IQ वर्सेस EQ की लड़ाई तो हमेशा चलती रहेगी, बट इमोशनल इंटेलिजेंस का कितना इंपॉर्टेंट रोल है और किस तरह, और उसको इंपॉर्टेंट तो देखिए है, तभी मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ और आपसे पूछ रहा हूँ, कैसे इसको मेंटेन किया जाए? आपने क्या किया? देखिए, इमोशनल इंटेलिजेंस, इमोशनल साइड का स्ट्रगल यहाँ पे 2 है. एक है एक्सपेक्टेशन फ्रॉम योरसेल्फ एंड योर पेरेंट्स, एंड सेकंड चैलेंज इज मैनेजिंग द नेगेटिविटी व्हिच विल बी सराउंडिंग यू. बिकॉज क्या होता है प्रैक्टिकली, व्हेन यू एंटर द प्रिपरेशन, initial stages people will support you. Everybody will be like, you are preparing for UPSC, you know, it's a big thing. I mean, we really, I know you will definitely make it. Everything you will get a lot of positivity in your initial stages of preparation.
But जैसे ही you start failing the attempts ना, people develop a very different perspective towards you. They'll be like, अभी भी तैयारी ही कर रहे हो, कुछ निकला भी है, या तुम्हारा तो प्री ही नहीं निकला, तुम छोड़ पंचवर्षीय दो, योजना में हो. हाँ तुम्हारा तो तुम छोड़ दो, ये नहीं होगा तुमसे. A lot of people will also criticize you, and not only you, they will also criticize your parents. But you know, you are doing UPSC. What did you think, that your son is some kind of superhero, that he is going to clear UPSC, all of that? उसके तो 10th में 60 marks थे, वो क्या निकालेगा UPSC, है ना? All of that. You will get lot of negativity as you proceed in this journey. जब रिजल्ट आएगा, again everything will change, again everything will turn positive, ठीक है? But then between जो when you start failing the attempts, और सबका होता है थोड़ा बहुत, एक आध फेलियर तो everybody has seen. So in that process the perspective changes. तो वहां पे इमोशनल इंटेलिजेंस का होना बहुत जरूरी है, to manage your expectations as well as to handle the negativity around you. तो इसीलिए apart from positive self-talk तो बहुत जरूरी है. I would suggest कि genuinely you need to pursue a hobby. Genuinely you need to pursue a hobby. Do meditation. थोड़ा बहुत आप friend circle maintain कीजिए, but people who genuinely are well wishers for you. Genuinely they want you to see you succeed in life. Who are genuinely happy for you. क्योंकि फेकनेस तो दुनिया में बहुत है. Everybody can say, oh, I'm so happy for you. You know, all of that. Everybody knows. क्योंकि आजकल communication skill, literally every human being is born with it. बाकी there is a big difference between goodwill and good communication skill. Good communication skill, literally everybody has. 99% will have good communication skill, and they'll always be like, I'm so happy for you, I'm support, you know, I have my full support for you. Anything you need, call me, huh? Anything you need, you call me, I'll be there for you. True. That is the biggest lie, I think. I will be there for you. True. One, if I have to say that what is the biggest lie in this planet, that is, I'll be there for you. Because nobody is literally there for anyone. And 2 a.m. friends. At 2 a.m. friends. I think it's a myth. It's an illusion. I don't know. Some people might have, but आजकल के competitive ज़माने में, I think it's very, very rare. If you have them, keep them. They are gold. So that is one thing. तो emotional intelligence को मतलब develop genuine connections. थोड़ा आप meditation वगैरह कीजिए. सेल्फ हेल्प बुक्स पढ़िए, कभी कभी काम आता है, मोटिवेशनल बुक्स, एंड जस्ट डू व्हाट यू लाइक एंड डोंट बी बॉदर्ड अबाउट व्हाट पीपल से, बिकॉज दिस विल कीप ऑन चेंजिंग. फॉर एग्जाम्पल, when you start your preparation, everybody will support you. When you, by God forbid, but then if unfortunate thing happen and if you start failing attempts, people will criticize you, people will raise question about your credibility, कि क्या कर रहे हो, कहाँ लगे हो. Then again, when you achieve success, I knew it, you will make it to the list. 180-degree reversal. Something in my heart always used to say this. Yeah, something in my heart always. I knew it from the first day you'll make it. If you knew it, then why did you criticize me when I was failing? You should be there ना, तभी तो आप बोल देते. नहीं, that because I am your well-wisher ना. I didn't want to see you try. I didn't want to. So that happens a lot. So emotional intelligence बहुत जरूरी है, along with academic intelligence also. Very well said and very well put, and I'm very glad that you talked about pursuing your hobby. मैंने पहले sacrifice का question किया था, इसीलिए किया था. बहुत सारे लोग उन चीज़ों को छोड़ देते हैं कि उसका टाइम भी पढ़ाई में दे दें जिससे उनको खुशी मिलती है. एक्सरसाइज, फिजिकल एक्सरसाइज, मेंटल एक्सरसाइज करना छोड़ देते हैं, सोना कम कर देते हैं. ऑल दिस इज वेरी अनहेल्दी. इट अफेक्ट्स योर मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ. तो मैं तो बोलता ही रहता हूँ, मेरी बात कौन सुनता है. लेकिन आप अचीवर हैं, आप प्लीज़ एक बार बोलिए कि मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ को ताक पर रख कर कुछ भी अचीव नहीं हो सकता है. सो what did you do? I mean, what was your hobby that used to give you solace in your hard times? And what personal discipline that you maintain? I'm not talking about studying discipline, but apart from that, आपने किन किन चीज़ों को नहीं छोड़ा क्योंकि आपको प्रैक्टिकली समझ में आ गया था कि इसके बिना तो गुजारा नहीं है. जी, नो एक्चुअली मतलब ऐसा है ना कि लोग, सी आई रेड समवेयर, मुझे ठीक से याद नहीं, बट देयर वाज समथिंग कॉल्ड अ 4 burner theory. So one is work, one is family, one is I think your hobbies,
और एक कुछ था, अभी आई एम नॉट एबल टू रिकलेक्ट। तो वहां पे आई कुड मतलब जहां तक मुझे याद है, तो लोग क्या करते हैं ना, व्हेन यू आर परसुइंग समथिंग, द सिंगल मोस्ट थिंग दैट गेट्स सैक्रिफाइस इज योर फैमिली। लोग अपने मॉम डैड से बात करना छोड़ देते हैं, कुछ लोग you leave out on your, yes, friends, I think friends and social life was another one. तो friends and social life miss out कर देते हैं, अपने आप को एक रूम में बंद कर लेते हैं, and they are just constantly overthinking about कि होगा नहीं होगा. So that affects the mental health. और उससे क्या होता है ना, प्रोडक्टिविटी भी कम हो जाती है, because when you are running a race, you can't win a race with a broken leg. है ना, मतलब आपको फिजिकली फिट होना पड़ेगा, तभी आप जाके भाग पाएंगे. अगर आप फिजिकली फिट नहीं है, अगर आप मेंटली फिट नहीं रहेंगे, तो आप कैसे रेस जीतेंगे? क्योंकि ये सब इसी का खेल है. इन ऑर्डर टू विन इट इन द फील्ड, यू हैव टू फर्स्ट विन हियर. यहां से अगर आप जीत गए ना, आप वहां भी जीत जाओगे. लोग पहले यहां से हारते हैं. आई विल टेल यू, देयर आर सो मेनी सुसाइड केसेस ऑफ स्टूडेंट्स इन कोटा, 16-17 ईयर ओल्ड. व्हाई दे आर कमिटिंग सुसाइड? क्योंकि किसी ने इनके दिमाग में डाल दिया दैट इफ यू डोंट गो इनटू एन एनआईटी और आईआईटी और हाँ एनआईटी आईआईटी नीट वगैरह जो भी है, योर लाइफ इज डिस्ट्रॉयड. किसने बोला? ये कहाँ लिखा है कि if you are not an engineer, if you cannot become an engineer, if you cannot become a doctor, if you cannot clear UPSC, your life is destroyed, there is no hope. ये कहाँ लिखा है? You give me the source जहाँ पे लिखा है कि ये you will be a failure. I think these are just social constructs. There are so many people who have never appeared for UPSC exam. I have my cousins who have never written UPSC exam doing very well in life. I know there are people who have never appeared for JEE and NEET and all, and they have done BCom, उसके बाद CA वगैरह कर लिया, chill कर रहे हैं life. So success का कोई एक definition नहीं होता. But I think our society is obsessed with those 3 exams: JEE, NEET, UPSC. अलग ऑब्सेशन है इंडिया में इन तीनों एग्जाम्स को लेके. और इसकी वजह से जो हमारा एक्चुअली यंग डेमोग्राफिक डिविडेंड है, चाहे वो दोस 15-16 ईयर ओल्ड किड्स और दोस 20-25 ईयर ओल्ड पीपल, उनका मेंटल हेल्थ, it has just ruined their mental health of everybody, because they start calibrating themselves with the success in these exams, कि निकाल पाए तो ही जिंदगी में कुछ है, नहीं निकाल पाए तो कुछ नहीं है. तो ये बहुत टॉक्सिक एक नैरेटिव है जो सोसाइटी में चलती है. तो मैं तो यही बोलूंगी कि ओके, इट्स ओके टू प्रिपेयर फॉर दिस, बट डोंट सैक्रिफाइस योरसेल्फ, डोंट लूज योरसेल्फ, बिकॉज व्हेन यू लुक एट द मिरर यू शुड बी एबल टू फाइंड योरसेल्फ. कुछ लोग भूल जाते हैं, दे आर लिविंग, बट दे आर लिविंग, उनका बस रेस्पिरेशन चल रहा है. दे आर लिविंग बिकॉज देयर रेस्पिरेशन, सांसें चल रही है तो रेस्पिरेशन, हार्ट बीट चल रहा है, सो दे आर लिविंग बीइंग. They are not living because they have actually stopped living their life. They don't remember what their hobbies were. किसी को पेंटिंग करना, this movie 3 Idiots, it's a very very good message. किसी को फोटोग्राफी का शौक था, किसी को पेंटिंग करना था, किसी को गिटार में शौक था, but then कोई किसी को म्यूजिशियन बनना था, but then the society is like, नहीं, तुमको डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, तुमको यूपीएससी निकालना है, तुम यही करो. In fact, sometimes when I look back, I think sometimes even I have lost myself. मुझको याद ही नहीं है कि मुझे क्या करना पसंद था. कभी कभी मुझे भी ऐसा लगता है. Now that I am again मतलब there are so many people I have lost touch with all those people in my school friends, कुछ college friends. So some people are like calling me and I'm speaking to them after 10 years, after 12 years. I remember I was having a conversation and she was my school friend. And I asked her, did you get married and all? Yes, I got married. I have a son also. He's 2 years old. I'm like, oh my God, so much have happened. And I don't even realize because I was busy solving Lakshmikant. So that happens. So my advice is that don't lose yourself. Don't give up on your hobbies. Don't cut off from your friends and family, because after everything, or when you achieve all of these things, it's actually, there are certain things which are permanent in your life, your friends, your families, your hobby. Basically, you should always remember who you are. When you kill yourself, then there is no point. Those achievements don't mean much in your life. These are just, है, मतलब ठीक है, tags है, but they, if you stop living, then those things don't really matter much. So there is a saying
that success is not the cause of happiness, it's the result of one. Yes, yes, It's a result. definitely, So definitely. happy people tend to be more successful. Yes. Yeah. So I think that would be all. Thank you so much for your time, Thank Lisa, you, thank and you. heartiest congratulations once again. Wish you a great life ahead. Thank you, thank you, Thank you, so much. everyone.